Good morning all. Yesterday we have done the topic how to find remainder. Today we will do Euler function, most important topic. Many time question asked from the have been asked from this topic. Euler function. This is the most important topic of number theory. What is Euler function? Let n be positive integer, then Euler function, this is Euler function, it is denoted by this symbol. Let n be positive integer, Euler function is denoted by this symbol, and it is equal to the number of positive integers m such that m greater than equal to 1 and less than equal to n, and that integers are co-prime to n or relatively prime to n. ठीक है, co-prime numbers क्या होते हैं आपके, जिनकी GCD 2 number are said to be co-prime if their GCD is 1, और 2 number are said to be relatively prime if their GCD is 1. तो co-prime और relatively prime एक ही बात है, सेम मीनिंग है. तो क्या है ये Euler फंक्शन आपका, क्या है, number of positive integers m such that m less than equal to n and 1 greater than equal to 1 and co-prime to that positive integer, co-prime to n. This is equal to 1. And how to now this Euler function, if p n is p prime number, then Euler value is calculated by p minus 1. डायरेक्ट रिजल्ट्स है ये आपके है. और if 5 p की पावर k is calculated by this p की k minus 1. If m and n are two relatively prime integers, positive integers, m and n क्या है आपके co-prime integers हैं, co-prime positive integers, and their product, then Euler function आपका ऐसे, Euler function is multiplicative function, then it is equal to phi m into phi n, यानी phi m n. If m and n are co-prime numbers, then phi m n is equal to phi m phi n. And now how to calculate Euler value of a positive integer, Euler function of a positive integer. Example this 550. First of all you make factor of this. पहले क्या करेंगे आप 50 के फैक्टराइजेशन कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन 50 की है पहले 2 इंटू 5 का स्क्वायर. अब यहाँ पे आप देखो 2 और 5 का स्क्वायर, ये m है और ये n है, ये दोनों क्या है, इनकी जीसीडी आपस में क्या है 1 है. 1 है तो ये क्या है को-प्राइम नंबर है, यानी कि रिलेटिवली प्राइम. तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है फाई, आपका Euler फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है, तो आपका ऐसे ओपन हो जाएगा 5 टू Euler फंक्शन ऑफ 2 एंड दिस 5 स्क्वायर, एंड 5 2 इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 2 minus 1 यानी 1. एंड यहाँ पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 5 p की पावर k इज इक्वल टू p की k माइनस p की k माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट Euler फंक्शन ऑफ 600. पहले आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बनी 600 की 2 की पावर 3 की पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर. ये सारे आपस में क्या है को-प्राइम नंबर्स है, तो फाई जो है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, प्रोडक्ट में ओपन हो जाएगा. तो 2 की पावर 3 का जो Euler फंक्शन है वो क्या आएगा, 2 की पावर 3 p की k माइनस p की k माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 3 एंड 3 जो आएगा वो आएगा आपका 3 माइनस 1, और 5 स्क्वायर क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, नाउ रिजल्ट 1. If n positive integer n is of the form this 2 की पावर k, that means ये positive integer n is an even number, इस फॉर्म का है, तो phi n जो है वो आपका n by 2 होता है. ठीक है, अगर phi n by 2 है, then n किस फॉर्म का होगा 2 की पावर k. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, sum of the all positive integers m such that m less than equal to n and greater than equal to 1 and m and n are co-prime is given by formula n by 2 into phi n. मीनिंग क्या है आपका, ये क्या है, उन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम है जो क्या है n से लेस देन इक्वल टू है और 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, और n के क्या है को-प्राइम है. उन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कैसे निकालते हैं, n by 2 इंटू phi n. ठीक है, जो ये स्टार्टिंग में था आपका, ये था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर लेस देन इक्वल टू n एंड को-प्राइम टू n is given by this phi n, and it is the, and if you want to find sum of the positive integers m such that m less than equal to n and
co-prime to n, then its sum is found by this formula n by 2 into phi n. Now this is the question asked in जून 2011 एग्जाम, जून 2011 एग्जाम. क्वेश्चन क्या है आपका, स्टेटमेंट ये है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, सेट क्या है आपका m such that m less than equal to 1000 and greater than equal to 1 and m and n 1000 is co-prime. मतलब आपको क्या करना है, इस सेट के अंदर ये जो सेट है इसके आपको क्या निकालनी है, कार्डिनलिटी निकालनी है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं. और सेट क्या है m सच दैट m लेस देन इक्वल टू 1000 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और m और 1000 दोनों नंबर, वो जो m है 1000 के साथ जीसीडी क्या रखता है 1 रखता है. तो और ऑप्शन आपके ये हैं a 1000, b 250, c 300 एंड d 400. तो दैट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में क्या है, आपको निकालना क्या है, आइलर फंक्शन किसका 1000 का, फाई 1000 आप कैलकुलेट करोगे और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू सम अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक asked in previous year question papers. Question is asked in June 2019. For any set A, question number 37. For any integer n greater than equal to 1, let dn is number of positive divisor of n, bn number of distinct prime divisor of n, and wn is number of prime divisors of n counted with multiplicity, मतलब क्या है, आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब भी नेट का एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करना हो तो केयरफुल रीडिंग आपकी मस्ट है. क्वेश्चन को आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि वो कह क्या रहा है, उसके बाद हम ऑप्शन पे और सॉल्यूशन पे जाएंगे. ठीक है, आपके और 2 मेथड्स हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक डिस्कार्ड मेथड. क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n. अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पॉजिटिव, हाउ टू कैलकुलेट पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n. Let n be positive integer then number of positive divisor of n is denoted by dn. This is the number of positive divisor of n. If n is of the form, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे उसकी p1 k1 p2 k2 and pr kr. If n is of the form, then number of positive divisor of n is calculated by this. जो आपकी प्राइम है, डिस्टिंक्ट प्राइम है, उनकी पावर्स में आप 1 ऐड करते जाओगे और सबको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट करेंगे. क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे हम, पॉजिटिव डिवाइजर से. अगर आपको कोई नंबर, कोई पॉजिटिव इंटीजर n दिया हुआ है और उसके पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कितने बनेंगे, तो आप n की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. फिर क्या करेंगे, जो डिस्टिंक्ट प्राइम है उनकी जो पावर्स हैं उनमें 1 ऐड करेंगे और सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ऐसे आप नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स आप पॉजिटिव इंटीजर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको dn जो है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n. नेक्स्ट आपका bn क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ n. जो आपका n है नंबर, जो उसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसमें जो जितनी संख्या होगी डिस्टिंक्ट प्राइम्स की, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जितनी संख्या होगी डिस्टिंक्ट प्राइम्स की, वो आपका bn है. उसके बाद नंबर ऑफ प्राइम, सपोज करो गिवन है आपका, जैसे इसमें एग्जांपल गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, dp 2 एंड p स्क्वायर इज 1 एंड wp स्क्वायर इज 2. मतलब क्या हुआ, देखो जो p है उसके पॉजिटिव डिवाइसेस कितने हैं, 2 ही बनेंगे. प्राइम के पॉजिटिव डिवाइसेस कितने होते हैं, 1 और इटसेल्फ, तो 2 है. तो p और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ n क्या है आपका p का स्क्वायर. तो
तो इसमें क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम कितने हैं, सिर्फ वन ही है, p ही है, एक ही प्राइम डिस्टिंक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है WN, क्या डिफाइन किया है इसने, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ n, जो n है उसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसके अंदर कितने प्राइम डिवाइजर्स हैं काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी, उनकी मल्टीप्लिसिटी के साथ काउंट करना है। जैसे इसमें क्या है, ये आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट चल रही है अभी, तो जैसे आपका p स्क्वायर है, p स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स कितने हैं, 1 है, और उनकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 है, तो क्या आ जाएगा, WP स्क्वायर आपका 2 आ जाएगा। मैं और भी एग्जांपल्स आपको, ऑप्शंस क्या है अब आपके इसमें, पहले मैं आपको और भी इससे ये क्लियर करती हूँ कि इसका मीनिंग और क्या है। जैसे हमने लिया ये DP स्क्वायर और Q की पावर 3, तो ये क्या आएगा आपका, इसकी प्राइम फैक्टर 2 + 1 और 3 + 1 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और Vn, जैसे अब Vn ये निकालना है आपको। अब इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम कितने हैं, P और Q, यानी कि 2 है। अब आपका WP स्क्वायर Q, अब प्राइम P की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2, और Q की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3, तो ये आपका आ गया 5। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली फंक्शन ये ऐसे डिफाइन है। नेक्स्ट आपके ऑप्शंस हैं जो इस क्वेश्चन के, फर्स्ट ऑप्शन है, कहता है इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 एंड Wn ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन Dn इज ग्रेटर देन log n। सेकेंड ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट n सच दैट Dn इज ग्रेटर देन 3√n। थर्ड ऑप्शन है आपका फॉर एवरी n 2 की पावर Vn लेस देन इक्वल टू Dn लेस देन इक्वल टू 2 की Wn। फोर्थ ऑप्शन है इफ Wn इज इक्वल टू Wm देन Dn इज इक्वल टू Dm। सॉल्यूशन, मैंने आपको बोला था कि आप या तो डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं या फिर डिस्कार्ड मेथड। अगर आपको क्वेश्चन में डिस्कार्ड मेथड में क्या करेंगे, हम एग्जांपल्स लेंगे और ऑप्शन को कट करेंगे। जैसे मैंने ये ऑप्शन लिया, पहले हम लेते हैं फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देखो ये कहता है कि Wn इज इक्वल टू Wm, ये इक्वल है तो ये Dn इज इक्वल टू Dm आएगा। देखो मैंने लिया जैसे n की जगह मैंने ले लिया, n हम ले लेते हैं, n मैंने लिया p स्क्वायर और Q, तो Wn कितना आएगा आपका 2 + 3 5। नेक्स्ट मैंने m लिया p Q की पावर 4, तो Wm कितना आएगा आपका 1 + 4 5। Here Wn इज इक्वल टू Wm, बट अगर आप फाइंड करते हैं Dn, तो Dn कितना आएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस कैसे निकालते हैं, जो प्राइम है उनकी पावर में 1 ऐड कर दो। देखो n क्या है, p का स्क्वायर कर दो, जिसकी पावर में देखो 2 में 1 ऐड करो कितना आएगा 3, और 3 में 1 ऐड करो कितना आएगा 4, तो आ गया आपका 12। नाउ फाइंड Dm, m क्या है आपका, m इज दिस p इंटू Q की पावर 4, p इंटू Q की पावर 4। तो आप Dm कैसे निकालेंगे, इसकी पावर जो है 1, उसमें 1 ऐड करेंगे 2, और 4 में 1 ऐड करेंगे 5 10। तो अब हमने देखा कि Wn इज इक्वल टू Wm इन दिस एग्जाम्पल, बट Dn इज नॉट इक्वल टू Dm। Dn क्या है 12 और Dm क्या है 10, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, आई फर्स्ट ऑप्शन, इफ हमें क्या लेना है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें एक n लेना है जो क्या है 1000 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, और मैंने लिया n 10 की पावर 5 जो कि 1000 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, एंड Wn क्या है, इसमें काउंटेड मल्टीप्लिसिटी कितनी है 10 की, एक ही प्राइम है उसकी काउंटेड मल्टीप्लिसिटी कितनी है 5, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम ये वाला हम ले सकते हैं n। तो हम कैलकुलेट करते हैं Dn कितना आएगा, यानी कि D 10 की पावर कितना आएगा आपका, इसकी पावर में 1 ऐड करते हैं 6 आ जाएगा, ठीक है। और 3√n, तो 3 log n, log 10 की पावर 5 log
10. The approximate value of this is 2 point something, which is greater than 10. Hence, Dn is not greater than log n in this example. Therefore, this option is also wrong. Okay. Now for the third option. देखो there exists such that this. आप इसमें n लेके देख सकते हैं और कैलकुलेट वैल्यू करेंगे तो आपको इस तरह का मतलब इंटीजर नहीं मिलेगा, बट इसमें एग्जांपल मैं नहीं ले सकती, पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है आपका, फॉर एवरी n हमने लिया, सपोज हमने लिया P1K1 PR KR, ठीक है। अब इसमें हम लेंगे Bn, क्या बनेगा आपका, Bn क्या डिफाइन था, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। डिस्टिंक्ट प्राइम कितने हैं इसमें, r है। कितने हैं डिस्टिंक्ट प्राइम इसमें, r, तो ये Bn आपका r आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद Dn कितना आएगा आपका इसमें, Dn आएगा K1 + 1 KR + 1, और आपका Wn क्या आएगा, हर एक उसकी क्या है मल्टीप्लिसिटी कितनी है प्राइम की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, K1 K2 KR, तो इन सबको ऐड कर देंगे हम। नाउ फॉर द थर्ड ऑप्शन में क्या है आपका 2 की पावर Vn क्या है 2 की पावर R, विच इज इक्वल टू 1 हाउ मैनी टाइम्स, R टाइम्स, ठीक है। और Dn क्या है, Dn कैसे, ये है K1 + 1 एंड KR + 1। देखो अब इन दोनों टर्म्स को देखो, जो 2 है, K1 जो है आपका, K1 या तो 1 हो, मतलब मिनिमम क्या हो सकता है 1, और फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो 2 है वो हमेशा क्या रहेगा, <= रहेगा K1 + 1 से, और सिमिलरली 2 <= K2 + 1 से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर 2 की पावर Bn इज <= Dn, ठीक है। Now take 2 की पावर Wn। 2 की पावर Wn is equal to 2 की K1 plus 2 की K2, sorry 2 की पावर K1 plus K2 plus KR, 2 की पावर K1, 2 की पावर KR। Now Dn is equal to this, Dn आपका ये है। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं, जो देखो ये क्या है 2 की पावर K1 और ये क्या है K1 + 1, तो K1 + 1 ऑलवेज <= क्या रहेगा 2 की पावर K1, क्योंकि आपका K1 जो है वो <= 1 है इंटीजर। मिनिमम अगर 1 रखा तो आपने 1 + 1 2 और 2 की पावर 1, उसके बाद अगर आप 2 रखोगे तो 3 और 2 की पावर 3, हमेशा क्या रहेगा <= रहेगा ये वैल्यू। और ये क्या है आपका, this is equal to 2 की पावर Wn, hence option third is correct and it is a question of section B, therefore single correct question, single answered question, तो option third इसका क्या है, correct है। और अगर ये क्वेश्चन होता आपका सी सेक्शन का तो आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ता, जैसे कि मैंने चेक किया है by using discard method। थैंक यू।